وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وتمم بالخیر۔ رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ رب زدنی علما۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو کلمہ کے بارے میں بتائیں گے۔ کلمہ، ہم جو بھی الفاظ منہ سے نکالتے ہیں اسے کلمہ کہتے ہیں۔ اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک کا معنی ہوتا ہے، دوسرے کا معنی نہیں ہوتا، جیسے روٹی بوٹی، پانی وانی۔ یہ تو تعریف تھی اردو میں، لیکن عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کالیماتن۔ کیا کہتے ہیں؟ کالیماتن۔ کیا کہتے ہیں؟ کالیماتن۔ اردو میں کلمہ کہتے ہیں اکثر لوگ، لیکن اس کا کیا ہے؟ کالیمہ۔ اس کے اگر ہم اردو میں پڑھیں گے تو کالیمہ ہو جائے گا، عربی میں پڑھیں گے تو کالیماتن۔ اس کا مطلب ہے بات۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بات۔ کیسے ہم پڑھتے ہیں؟ پہلا کلمہ پہلی بات، پہلا کلمہ پہلی بات۔ دوسرا کلمہ دوسری بات۔ تیسرا کلمہ تیسری بات۔ چوتھا کلمہ چوتھی بات۔ پانچواں کلمہ پانچویں بات۔ چھٹا کلمہ چھٹی بات۔ تو آپ ہم نے اس کو کہنا ہے پہلا کلمہ۔ کیا کہتے ہیں؟ پہلا کلمہ۔ یہ تا کے نقطے آپ نے ہٹا دینے ہیں، اس کو پڑھنا ہے کلمہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ کلمہ۔ جیسے ہم کسی کا نام لیتے ہیں فاطمہ تن، کیا لیتے ہیں؟ فاطمہ تو تن۔ ہم کیا اردو میں بولتے ہیں؟ فاطمہ۔ کیا بولتے ہیں؟ فاطمہ۔ فاطمہ۔ کیا بولتے ہیں؟ فاطمہ۔ خالدہ تن، کیا بولتے ہیں؟ خالدہ۔ کیا پڑھتے ہیں؟ خالدہ۔ اسی طرح عربی میں کلماتن کہتے ہیں، اردو میں کلمہ کہتے ہیں۔ عربی میں کلماتن تعریف کیا ہے؟ جو بھی با معنی الفاظ منہ سے نکلتے ہیں اسے کلماتن کہتے ہیں۔ اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک کا معنی ہوتا ہے، دوسرے کا معنی نہیں ہوتا۔ مثال روٹی بوٹی، پانی وانی۔ جو عربی میں ہے، یہ روٹی با معنی ہے اور بوٹی بے معنی ہے۔ اس کا مطلب ہے لیکن اس کا مطلب نہیں ہے۔ پانی میں با معنی، پانی با معنی ہے اور وانی بے معنی ہے۔ تو یہ تو اردو ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں؟ جو بھی الفاظ ہم اردو میں منہ سے نکالتے اسے کلمہ کہتے ہیں۔ سب با معنی ہے، جو سب با معنی ہے۔ کیا ہے وہ؟ با معنی۔ اس میں بے معنی یا معنی کوئی بھی نہیں ہے۔ اس میں کچھ قرآن مجید سے دوسرا ورڈ کوئی نہیں۔ جتنے بھی قرآن پاک کے اندر الفاظ آئے ہیں ان سب کیا ہے؟ اس کا وہ سب با معنی ہے۔ کیا ہے؟ با معنی ہے۔ اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ معنی۔ کیا کہتے ہیں؟ معنی۔ کہتے ہیں الفاظ معنی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الفاظ معنی۔ تو اور اس کے صحیح لفظ کیا ہے؟ معنی ہے۔ معنی کیا ہے؟ معنی۔ معنی۔ تو عربی میں کہنا ہے با معنی اور بے معنی۔ ٹھیک ہے، آپ نے کیا کہنا ہے عربی میں؟ با معنی اور بے معنی۔ تو قرآن مجید کے اندر کیا ہے؟ کوئی الفاظ بے معنی نہیں ہے، سب کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، اس کا دوسرا مطلب نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کو پہلا کلمہ بتاؤں گا، یہ کیسے پڑھتے ہیں۔ پہلا کلمہ طیب۔ پہلا کلمہ طیب۔ طیب میں نے پاک، طیب میں نے پاک، لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ رسول اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ
मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं कोई इबादत के लायक नहीं हजरत मोहम्मद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल हैं। ये पहले कलिमा का तर्जुमा था। अब मैं इसको आपको बालग बताऊंगा। ला का मतलब नहीं, ला का मतलब नहीं, ला का मतलब नहीं, इलाहा माबूद, इलाहा माबूद, इल्ला सिवाय, इल्ला सिवाय, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, मुहम्मद मुहम्मद, मुहम्मद मुहम्मद, रसूल रसूल, रसूल रसूल, अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि बाज़ लोग क्या करते हैं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और उसके अंदर और लगा देते हैं। इसके अंदर और किसे कहते हैं, अरबी वाव को किसे कहते हैं, वाव को। वाव जब ये आएगा तो आपको पता चल जाएगा वाव का मतलब क्या है, और तो इसके अंदर आपको वाव नजर आ रहा है, नहीं। आ रहा। ये लफ्ज़ है अहलो अयाल, क्या है, अहलो अयाल, क्या है, अहलो अयाल, क्या है ये, अहलो इसके अयाल, अंदर है, वाव है, इसका वाव है, है, तो इसका मतलब क्या है अहल और अयाल। कि किसी को इनविटेशन आता है यहाँ कि जुनेद बीमा अहलो अयाल, कि जुनेद भी साथ आएगा, साथ कौन आएगा, उनके, अहलो तो वाव इसके अंदर नहीं नहीं है। हमें तर्जुमा करना है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आपको इस तालीमा के अंदर दो चीज़ें नजर आ रही हैं, एक अल्लाह और उसका रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या है, कुरान में है अतिउल्लाह कई दफ़ा आया है, अतिउल्लाह अति रसूल, अतिउल्लाह अतिउल्लाह। इस कालिमा के अंदर आपको दो चीज़ें नजर आ रही हैं, एक अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में कई मर्तबा जिक्र है अल्लाह की ताअत करो और उसके रसूल की ताअत करो, अल्लाह की ताअत करो और उसके रसूल की ताअत करो। सबसे पहले किसका नाम आया, अल्लाह का। किसका नाम आया है, अल्लाह का। तो सबसे पहले ताअत किसकी करनी है, अल्लाह की। ये किसकी ताअत करनी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये पहले अल्लाह ने कहा है पहले मेरा नाम, फिर मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना के मेरी ताअत करो, फिर मेरे रसूल की ताअत, फिर उनका हुक्म मानो जो बुराई से रोकते हैं और नेकी की दावत देते हैं। तो ये क्या है, आपने अल्लाह और उसके रसूल की क्या करनी है, अताअत करनी है। और आपको मैं साथ मजीद बताता चलूँ, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैंने अक्सर मुशाहिदा किया है कि सुनता भी हूँ कि जब कहीं अजान हो रही होती है, हदीसें मुबारका बयान की जा रही होती हैं, या कहीं आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, तो उन पर कोई दरूद नहीं भेजता। हमारे अक्सरियत ये लोग नहीं पढ़ते। तो हमने आपको बताऊं कि आपने, अगर आपको अजान आ रही है, उसकी आ रही है, तो आपने अपने बच्चों को या खुद आपने ऊंची आवाज से कहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजान के वक्त या कोई हदीस बयान हो रही है या कोई महफिल लगी हुई है, कोई आपस में यार दोस्त बात कर रहे हैं, कोई वाकया बयान कर रहे हैं, तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है तो क्या कहना है आपने, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका ये फायदा होगा, अगर आप महफिल में बैठे हुए हैं तो आपने पढ़ा है लेकिन किसी और ने नहीं पढ़ा, तो वो भी आपकी आवाज़ सुनकर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध पड़ेगा। क्या करेगा वो, दूध पड़ेगा। तो इससे आपकी दुनिया में भी निजात है और आखिरत में निजात है, क्योंकि दरूद दुआ भी है। क्या है, दुआ भी है। दरूद
दुआ भी है। अब अक्सर हमें पता होता है कि हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, लेकिन हमें इसका तर्जुमे का नहीं पता। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला अला मुहम्मद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी आपको अजान, कोई हदीस बयान की जा रही हो, जब भी आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो आपने कहना है सल्ली अला मुहम्मद। क्या कहना है? सल्ली अला मुहम्मद। अब इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। क्या है? अल्लाहुम्मा अल्लाह। सल्ली रहमत कर, सल्ली रहमत कर अला पर, अला पर मुहम्मदुन मुहम्मद, मुहम्मदुन मुहम्मद। ए अल्लाह रहमत नाज़िल कर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऐ अल्लाह रहमत नाज़िल कर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ए अल्लाह ऐ अल्लाह रहमत नाज़िल कर रहमत नाज़िल कर हजरत मोहम्मद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलैहि वसल्लम। तो आपने जब भी आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए तो आपने दरूद शरीफ पढ़ना है। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास मेरा जिक्र हो और मुझ पर दरूद ना पड़े वो कंजूस है। क्या फरमाया है? कि जिसके पास मेरा जिक्र हो, वो मेरा नाम मुबारक सुनकर मुझ पर दरूद ना पड़े वह कंजूस है। तो आपने जब भी आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए तो आपने ऊंची आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से कहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये लफ्ज़ आपको मोहम्मद नजर आ रहा है ना, अगर यहाँ पे मैं दिन लगा दूंगा ये, तो इनके मायने में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर बोले मोहम्मदन, मोहम्मदिन, मोहम्मदुन, तो इसमें मायने में तब्दीली कोई नहीं आई। क्यों नहीं आई? अब आपको बताता हूँ। आप कलमे में क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मुहम्मद मुहम्मद दूर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। यहाँ आ गया, डबल तनवीन आ गई जी। अब उसमें क्या पढ़ते हैं? द्रोशी में, दुरूद इब्राहिम में अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला मुहम्मदिन। मुहम्मदिन। क्या आ गई? तनवीन नीचे आ गई। अब आप क्या कहते हैं? अजान में क्या पढ़ते हैं? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो क्या आ गई? इसके ऊपर आ गई दो ज़बरें। क्या आ गई है इसके ऊपर? दो ज़बर। तो आपने परेशान नहीं होना कि दो ज़बरें आ गई हैं, दो ज़ेरें आ गई हैं, तनवीन दो पेशे आ गई हैं, तो इसके माने में तब्दीली नहीं होगी। तो आप बेफिक्र हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं ये ज़बर आ गई, इसका मतलब नहीं, इसके मानी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो आपने खुद भी अपनी इस्लाह करनी है और लोगों की इस्लाह करनी है कि जब भी आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो आपने ऊंची आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम।